कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए 2 लाइनें पेश करना चाहता हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ये 2 लाइनें संजय थूल सर के व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए योग्य लाइन लगती है। वैसे तो सहायक आयुक्त श्री संजय थूल सर से सभी भलीभांति परिचित है, फिर भी औपचारिक तौर पर सर का संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहूँगा। श्री संजय थूल सर नागपुर 2 आयुक्तालय में जो सहायक आयुक्त के पद से निवृत्त हो रहे हैं। सर ने नागपुर यूनिवर्सिटी से सन 1986 में बीकॉम की उपाधि प्राप्त की और उसी वर्ष 12 जून 1986 को रेलवे के ऑडिट विभाग में कनिष्ठ श्रेणी लिपिक एलडीसी के पद पर जबलपुर में ज्वाइन हुए। उसके अगले ही वर्ष जुलाई 1987 में ऑडिटर के रूप में डिफेंस अकाउंट विभाग जबलपुर में ज्वाइन किया। इसके 2 वर्ष पश्चात वर्तमान विभाग सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में दिनांक 6 नवंबर 1989 को निरीक्षक के पद पर आसीन हुए। लंबे अंतराल के बाद दिनांक 24 सितंबर 2002 में आपको अधीक्षक के पद पर पदोन्नति मिली। वर्तमान सहायक आयुक्त के पद पर दिनांक दिसंबर 2020 में आपकी पदोन्नति हुई। सर समाज कार्य में विशेष रुचि रखती है। विभाग में CGST, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, SC/ST एंड OBC एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन नागपुर के मुख्य संरक्षक है। साथ ही ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में अभी पुनः उनको चुना गया है। करीब डेढ़ दशक पूरा नहीं, करीब 13, अभी मेरे ख्याल से 14वां साल चल रहा है ना सर? टेन्योर का 14वां साल चल रहा है ना सर? 12 तो पूरे हो गए ना सर? जी। तो इस 13 साल में एक सशक्त हस्ताक्षर और एक बहुत ही एक प्रभावी और विराट व्यक्तित्व के धनी थूल साहब इस डिपार्टमेंट से विदा हो रहे हैं। ये तो विभाग के लिए निश्चित तौर पर एक क्षति है। साथ में इस बात की हम सबको बहुत खुशी होनी चाहिए कि जैसे एक एक पायदान वो जीवन का आगे चढ़ते गए, उनका कार्यक्षेत्र बड़ा होता गया और अब आने वाले दिनों में विभाग तो एक छोटा सा हिस्सा है समाज का, राष्ट्र का, तो समाज को और राष्ट्र को विभाग की जिम्मेदारियों से मुक्त थूल साहब मिलेंगे और उनका योगदान समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। ये हमारे लिए एक बहुत प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा और थूल साहब का जो साथ है 25 बरस पुराना है। फॉर 24 years I have known him very closely. We in 2002 worked together as inspectors in range for Raipur. There was another inspector also who also is an assistant commissioner. He is in the audience, Devidin Malviya Sahab. We three, it's a coincidence that all three of us ended up sooner or later in Nagpur. We were at those were different times. Ranges were not like what these youngsters would know. That range 4 had 7 inspectors under one superintendent. We were 7 of us. It has been a very inspiring journey of our beloved Thul Sahib within this department, and also right from those times there was something of an activist even 25 years ago, since the time I have known him. And that activism has transcended any small thinking, any pettiness, in not losing sight of
the bigger goals and the ideals he has always lived by, not just spoken, he has lived by those ideals. That's what makes him stand out in a crowd. I remember our Chief Commissioner Sahab speaking in JCM meeting last year, when he mentioned that some of very crucial administrative decisions he has made, about which he had not made up his mind, one of the defining factors was the inputs that was given to him by Thul Sahib. He said that a person of such conviction coming and sticking out his neck for someone and putting his entire credibility at stake made me believe him, and then I took a decision on which till that time he was not very decided. So that's the level of influence and conviction with which Thul Sahib has handled almost every single instance that has come his way in the departmental journey. Even as a family man, being fully involved with the family, living in a colony, being very cordial with neighbors, making friends out of strangers in no time, that's something that works with magic like him. We were neighbors for long. I remember 10 years back, when we were neighbors in the colony, in Nagpur colony, he held a small party at his home for his 50th birthday. 10 years just passed by in a jiffy. Then in between, he threw a party for us for their 25th wedding anniversary. It was a fantastic party. Then of course his elder son got married. They are here now. So literally time flies, and it has been an enchanting, inspiring presence to have worked alongside him, to be a friend, to be a junior, to be a student of his. For me, it has been a privilege. Apart from being an activist, the one role that that has been very dear to him, as he has shared with me on several occasions, is that of a social worker, and which I am sure will be the essence of his persona in the years to come. Working for the underprivileged, for the poorest of the poor, to secure their rights, to ensure that children who are deprived of a decent education because of impoverishment, to collect funds from society at large, to fund their education, to provide for their other basic needs also, apart from education, then to try to get to impart coaching to them so that they succeed in examinations, for competitive examinations for admissions to various courses or for employment, and then lending them support to stand on their own in society. That's something I'm sure most of us, very many of us, would want to do. But to do that with the regularity and on the magnitude that he does, that's fantastic. I tried to break down in my mind what makes him tick. What I could understand is that his broad-mindedness, his scale of vision, not to let needling criticisms or hurdles come in the way of making a true effort to actually deliver change. That has given outstanding results to his efforts, and the beneficiaries are those, amazingly, who will never be able to give anything back to him, pay back anything to him. That's where the difference he has caused in the lives of so many people. Even within this department, he has always stood up for the underdog. He began as a champion of rights for the SC/ST employees, but later on, as time progressed, he built a formidable reputation
as someone who would stand up for any victimization, irrespective of the category to which the officer or the employee belongs. That has been remarkable, and that is why he has won the respect and love of all of us across cadres, across categories. That makes him really a champion of the underprivileged. As he often tells us, his ideal is Dr. Ambedkar, and a wonderful thing about him is that it's not only lip service that he has paid to the great Baba Saheb, but he has lived by his ideals, tried to put into practice, into daily routine, the teachings of that great leader, and see it fructify into actual action and results. I think I've taken more than what time was should have been expected of me. We wish you, Thul Sahib, a very bright, very active, and a very, very constructive, at least 2 more decades for the benefit of society at large, more time with your family, and look forward to interacting with you, even working with you when we'll come to that stage, and keep attending more parties from you. Thank you so much. Good evening, everyone. Good evening. Today we have come together to bid farewell to a remarkable leader, a true mentor, and a compassionate human being, our Assistant Commissioner Thul sir, Sanjay Thul sir, who is retiring today itself, and he is our President of All India Federation SC/ST Central Excise Custom Employees Welfare Organization. Now also on 27th itself, again he has elected as a President of our organization. Congratulations, sir. During your tenure, you have left and the indelible mark on all of us. Your contribution towards the betterment of SC/ST and OBC employees has been outstanding. You have always come forward with a genuine concern and the proactive efforts to solve the problems faced by the employees, be it related to the promotion, seeking justice in cases of the department grievances, or ensuring that every employee is treated with the fairness and dignity. Your thoughtfulness have also been evident during your every special program, such as a celebration of Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti, Bhojan Dan on the occasion of the Dhammachakra Parivartan Din, or AGM of our association, or All India AGM of our federation. You ensured that every attendee was the care for the including making arrangement of the food and the hospitality. A reflection of your attention to every details and your respect of the people you serve, sir. One of your greatest quality has been your ability to encourage teamwork and the cooperation among all of us. Under your leadership, we have learned that unity is our greatest strength, and that together, no problem is too big to overcome. You have demonstrated time and again that with the dedications and the collective efforts, we can achieve our goal even in the most challenging situation. We are proud to say that we have learned many invaluable lessons from you, sir. Lessons that will guide us not just professionally, but also personally. Your leadership, resilience, and the positive spirit will continue to inspire us long after you step into this new chapter of your life, sir. On behalf of everyone here, I extend our heartfelt gratitude and warm wishes to you, Thul sir. We wish you a joy, healthy and fulfillment life after the retirement. May you continue to inspire all those you meet just as you are inspiring us. Thank you very much, sir. Thanks to everyone.
आज हम श्री संजय थूल जी के सुपरएन्युएशन के प्रोग्राम के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। मेरा और थूल जी का फर्स्ट इंटरेक्शन जुलाई 2023 से है, जब हमारे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ था पेस का हेडक्वार्टर में बैठने के लिए और सब अरेंजमेंट नहीं था, तो उस इशू से लेके आगे अभी तक थूल जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड नागपुर 2 में जो इनिशिएटिव लिए, और लास्ट 15 डेज पहले जो ऋषि सर का हमने यहाँ से विदाई का प्रोग्राम किया था उनके ऑफिस का, तो ऋषि सर ने स्पेसिफिकली थूल जी का अप्रिसिएशन किया कि उनके एफर्ट्स के कारण जो CPWD से जो उनको पेस अलोकेट हुआ है उसके लिए उन्होंने उनके एफर्ट को ये कि अप्रिशिएट किया था। वैसे ही नागपुर 2 में उन्होंने डिवीज़न ऑफिस यहाँ से शिफ्ट करने का, रेंज ऑफिस एज वेल एज कलमेश्वर डिवीज़न का जो ऑफिस है उस शिफ्टिंग के लिए इनिशिएटिव लेके वहाँ पे नया ऑफिस एस्टेब्लिश किया। विदिन 3-4 मंथ्स में वहाँ पे वर्किंग स्टार्ट भी हो गया, यानी ऑफिस का बस आप यानी ऑफिस प्रोक्योर करना और शिफ्टिंग करना वो सब चीज़ें यानी विदिन 3 मंथ्स में उन्होंने सब ये चीज़ें ये कर ली थी। उसके अलावा जो एडजुडिकेशन पेंडेंसी थी, सर्विस टैक्स के जो नासिक से केसेस अलोकेट हुए थे, अपने यहाँ के जो पेंडिंग केसेस थे सर्विस टैक्स के लगभग अराउंड 300 मुझे लगता है कि ऑर्डर इन ओरिजिनल उन्होंने इशू किए होंगे, अराउंड 150 के आसपास शो कॉज भी 16/4 के इशू किए होंगे। तो वो सब उन्होंने वर्कलोड ये किया। जो केसेस एडजुडिकेट हुए थे उसका भी यानी कोई रिकॉर्ड नहीं था, यानी एरियर्स का कुछ उन डिवीज़न में कुछ जो 3 साल 2 साल से जो रिपोर्ट आ रहा था वही कंटिन्यू हो रहा था सिटी डिवीज़न का। तो उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके वो यानी काम उसमें एरियर्स में उन्होंने किया, वो रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से उन्होंने डिवीज़न को ये किया। उसके अलावा सोशल वर्क में कंटिन्यू उनके मुझे मैसेजेस आते थे कि सर मुझे आज इधर प्रोग्राम अटेंड करना है, यहाँ का स्कूल में हम जा रहे हैं थोड़ा वहाँ एक लेक्चर देना है। तो ये सोशली भी बहुत यानी एक्टिव है। और एक इंसिडेंट यानी अच्छी बात ये है कि थेटे सर ने जब रायपुर कमिश्नरेट ज्वाइन किया था उस टाइम पे थूल जी वहाँ पे एज ए इंस्पेक्टर थे, और आज यहाँ पे रिटायर हो रहे तो सर के अंडर ही उनके सुपरएन्युएशन हो रहा है। तो मैं अभी संजय थूल जी को उनके फ्यूचर लाइफ के लिए हैप्पी हेल्दी लाइफ आपके लिए विश करता हूँ, और प्रॉस्परस लाइफ आपकी रहे। आप अभी फैमिली के साथ आपका पूरा टाइम व्यतीत आप कर पाएंगे, और जो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ अभी चल रही है उसी को आप कंटिन्यू करते रहिए। डिपार्टमेंट ऑफिसर के साथ कंटिन्यू टच में रहिए। थैंक यू। यहाँ पे हम लोग जो थूल साहब के विदाई के बारे में इकट्ठा हुए हैं, उनका जो सोशल वर्क करने का जो है काम है, उनको जो एक जुनून है सोशल वर्क करने का, मुझे नहीं लगता कि वो उस काम से रिटायर होंगे। सर्विस से भले रिटायर हो जाए, लेकिन जो सोशल वर्क का ये है उनसे कभी रिटायर नहीं होंगे। और उनका एक पर्सनल अगर देखा जाए तो हमारे परिवार में थूल साहब एक ऐसे आदमी हैं जो हमारे सारे जो कार्यक्रम थे, घर के जो डिसीजन लेने हैं, सारे हम लोग थूल साहब के ज़रिए, थूल साहब के सलाह के बगैर हम लोग कभी नहीं लेते। हमारा घर सारा थूल साहब लीड करते हैं, जिस बारे में डिसीजन लेना हो, ये उनका एक पर्सनल ये है पहलू है जो शायद ही ऑफिस में कभी उजागर नहीं हुआ होगा। और मैं तो इनको रिटायर हो रहे, ये एक अच्छी बात है कि उनको फुल टाइम सर्विस करने का एक टाइम मिलेगा, और मैं विश करता हूँ सेम फॉर देम। थैंक यू वेरी मच। Hello, good evening everyone. All the people on the dais and all the people sitting here. तो आई थिंक आप लोग प्रोफेशनली बहुत अच्छे से जानते होंगे मेरे पापा को, मतलब उसके ऊपर और हाईलाइट नहीं करूँगा मैं। बट पर्सनल लाइफ में जो उन्होंने जितना बड़ा रोल प्ले किया है, मतलब मेरे लाइफ में, द वैल्यूज़ ही इंस्टिल्ड इन मी, तो वो वैल्यूज़ कितनी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि मतलब जैसे मैं छोटा था और मैंने देखा उनको मतलब काम करते हुए, मतलब इतने सारे लोग आते थे घर पे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे लाइफ में लग्जरीज नहीं दी होंगी, बट उन्होंने मुझे लाइफ में एक चीज़ दी जिससे उन्होंने मतलब मुझे बड़ा किया, वो था हिज कमिटमेंट टू हिज प्रिंसिपल्स।
एंड जब भी आप लाइफ में ऐसे टाइम में होते हैं व्हेन यू क्वेश्चन योर प्रिंसिपल्स, व्हेन यू मे हैव टू कॉम्प्रोमाइज इट, देन आई रिकॉल who my father is and what principles he holds, and that strengthens me. मतलब कहीं पे भी, be it at my office space, be it my workplace या फिर college हो, then when I have to work harder for any examination, then I recall all these things, all these values which he has given me, and I'm really thankful for that, Papa. Thank you so much. And to coming on to like his retirement, so मुझे लगता है बस ये एक मीटिंग है, there is no such thing as retirement, because वो अभी और यंग ही होते जा रहे हैं, now he has more things to do. So and लास्ट में मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि कैसा है पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें होता है लाइक दे आर वेरी कमिटेड टू देयर प्रिंसिपल्स, बट व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज दैट यू ऑल आर वेरी सपोर्टिव एंड यू हैव बीन सो सपोर्टिव टू हिम इन दिस ऑफिस एंड हेल्ड हिम, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. हम लोग को मतलब 92 में हमारी शादी हुई है, तब से मैं उनको जानती हूँ. वो सोशल वर्क में एकदम डेडिकेटेडली काम करते हैं. उनका सोशल वर्क, उनका नेचर, पोलाइट, वो सब आप जानते हैं. वो कितने जुडिशियस है आप लोग, वो भी आप जानते हैं. लेकिन मैं यहाँ पे एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ जिससे वो आज आप लोग के सामने इतने आप लोग तारीफ़ कर रहे हैं, जो वो पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, उसका एक इंसिडेंस मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ. ये 2002 की बात है. वैसे तो वो बहुत पोलाइटली है, जुडिशियस है, और बिल्कुल हम लोग का स्मूथली लाइफ चल रहा था. 2002 तक एकदम कोई ऑफिस का कोई टेंशन नहीं, कभी घर में फाइल नहीं आई, कुछ नहीं. पर 2002 में ऐसा वाक़या हुआ कि उनका पूरा लाइफ चेंजिंग वाक़या बोल सकते हैं उसको. तो वो पहले इतना एक्टिव नहीं थे मतलब ऑफिस में, लेकिन जो उनका फिर प्रमोशन का जो इशू हुआ तो उसमें फिर उनका प्रमोशन नहीं हुआ उनका. तो वो फिर एकदम उन्होंने अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, ऑल एजेस तलवार जो बोलते हैं, अपनी पेन निकाले उन्होंने अपनी, और जो चालू किया उन्होंने अपना उनके अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ, तो उसके अगेंस्ट में जो उनकी लड़ाई चालू हुई, तब मैं अपने पार्ट से बताना चाहती हूँ कि उस टाइम में मेरी क्या कंडीशन थी. तो हमारा कोई ऐसा बैकअप नहीं है पीछे में, मतलब हम एकदम साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो ऐसा कोई बैकअप नहीं है कि हम लोग मतलब अगर आप हायर अथॉरिटी से कुछ लिख रहे हैं, उनके अगेंस्ट में लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक अपने ऊपर एक बर्डन बना रहता है कि कुछ भी हो सकता है. इंडिविजुअल इंसान अगर कुछ करता है तो कुछ भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट में सस्पेंड हो सकते हैं, चार्जशीट मिल सकती है, सैलरी नहीं आएगी घर में. तो ये सब इशू मेरे को फेस कर रही थी. मतलब मुझे डर लग रहा था, ऐसा हुआ नहीं लेकिन मुझे डर लग रहा था उस टाइम में. तो मैं अपने पार्ट से बता रही हूँ यहाँ पे. तो उस टाइम में मैं इतना मतलब डर जाती थी कि ये अब क्या कर रहे हैं और ये इसका परिणाम क्या होगा. मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अगर मतलब कुछ अगर हुआ तो मेरा क्या होगा, ये सब मेरा मतलब प्रॉब्लम था. तो मैं दिन भर रोती थी घर में. तो मैं बोलती थी कहीं हमारी लाइफ गलत ट्रैक पे तो नहीं चली गई. तो ये मुझे प्रॉब्लम उस टाइम में हो रहा था. लेकिन अभी आज देख रही हूँ तो नहीं, लाइफ फिर उसके बाद में 2-4 साल के बाद पता चला कि लाइफ गलत ट्रैक पे नहीं गई, सही ट्रैक पे आई है अभी. तो ये थुल साहब का मतलब ये मेरा ये है उनके साथ. बाकी वो तो आप सबको पता ही वो कितने जुडिशियस है और कितने सोशल है. और मैं कमिश्नर साहब से क्वेश्चन बस करना चाहूँगी यहाँ पे कि सर आप 5 साल इनको और रख सकते हैं क्या यहाँ पे. नहीं मतलब ये 10 बजे घर तो आ जाएंगे ना, नहीं मतलब 10 बजे जाएंगे, 6 बजे घर तो आ जाएंगे. क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता वो घर में रहेंगे करके, क्योंकि अभी 1 तारीख से उनके प्रोग्राम पूरे फिक्स है कि उनके आउट ऑफ स्टेशन जाने के पूरे उनके प्रोग्राम फिक्स हो चुके हैं. तो इसीलिए मैं बस पूछना चाह रही थी. बाकी अब सब आप जानते ही हैं, और बाय नेचर भी उनका बहुत ही है और सोशली भी बहुत है, वो एक्टिव है. बस भगवान से प्रार्थना है कि उनका ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी लाइफ खूब एंजॉय करे. और जो अभी उनको सोशल वर्क करने का बहुत है पहले से, और बहुत सोशल है, हर इसमें बहुत एक्टिव है. तो अभी वो अपनी लाइफ खुल के जिए और खुल के एंजॉय करे. बस यही कह के मैं अपने 2 शब्द खत्म. थुल साहब से मेरा परिचय वैसे जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भिलाई में हुई थी तब से है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में जब 2020 में जब आया
तब मैंने ऑडिट का भी चार्ज कुछ 3-4 महीने के लिए मैंने लिया था। तो तब से हमारी फिर से मुलाकात हुई। थूल साहब जब भी फ़ोन करते थे या फिर कमरे में आते थे तो किसी का ग्रीवेंस लेके आते थे, इसका सस्पेंशन रिवोक करो, इसका MSc का रेगुलाइज करो, इसका कुछ तो कुछ करो। जब भी आएंगे तो किसी का ग्रीवेंस ही लेके आएंगे, और जितना हो सके हमने ज़रूर किया है। अभी स्टाफ में काफ़ी पॉपुलर है ये, क्योंकि ये हमेशा उनका पक्ष लेते हैं और स्टाफ की नीड्स, स्टाफ के ग्रीवेंसेस और उनको अथॉरिटीज़ तक लेके जाना। कई बार होता है कि एम्प्लॉयज़ की गलतियां भी रहती है, लेकिन उसमें से भी वो कुछ पॉजिटिव पॉइंट लेके आते कि नहीं नहीं इसने ये गलती तो की है, लेकिन देयर आर दिस एग्रीवेटिंग एंड सर्कमस्टांसेस and because of which the whatever misconduct is there should be condoned or should be taken, should be viewed in the proper context. ये हम उनका हमेशा एक ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बड़े सभी ने कहा है कि सोशल वर्क में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। सोशल वर्क में के प्रति कि सोसाइटी के वक्त प्रति कुछ करने की इच्छा रखना एक अलग बात है और एक्चुअल में करना वो अलग बात है। तो वो करने में विश्वास रखते हैं और हमने नागपुर 2 में भी देखा, वो हमेशा कुछ न कुछ वो प्रपोजल ही लेके आते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए करके। आज वो रिटायर हो रहे हैं, हम उनके आगे की रिटायर्ड लाइफ को शुभेच्छा देते हैं। और रही मिसेस थूल की जो रिक्वेस्ट है कि इनको 5 साल रिटेन करने की, वैसे काफ़ी पत्नियों की ये रिक्वेस्ट हो सकती है इसलिए उसको हम नहीं करेंगे सकते, क्योंकि इसलिए वो दैट विल हैव इट विल कॉज एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, वो दैट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन परमिट। सो आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस। थैंक यू। So you have spoken all that possibly you could cover about an officer, which means I'm left with not much of space to speak on, but still I remember having met him on and off, particularly since some association related or an employee related matter. I don't think I've ever discussed with him anything on technical matters. Probably there was no reason to interact, but then I was generally interacting more on the administrative matters, some issues of staff related issues. Being the office bearer of an association, he was more involved. But then one thing which stands out in him is he comes as a good package of an officer at senior level in the service overall, because he has that energy with him. That's something which I love. I don't like dull people. That is my nature. So the first attraction is that he comes with a lot of, one, he walks very fast. He doesn't walk very slow. You walk very, very rapid strides. And then, the whole, the time spent is full of energy. And there is very clear, what he speaks is very clear and very articulate in whatever he canvasses. There is no confusion. I never had a confusion. I believe others do share that. That ability to communicate well, articulate the course which is, and then put it in a manner which is very acceptable. That is also another issue. See, in service matters, sometimes, it can irritate both sides. I don't think he would have ever, I would have entertained him well, tried to give him a cup of tea, but invariably he doesn't take it. That has been his nature. But then it has been joyful to communicate with him, because you also learn in the process. And then he was more of a facilitator in that sense. He was never in that, at least my tenure I have seen him being very accommodative in terms of, negotiating a position or making us understand a position. It's very, very good to interact with senior officers who have a cause as well, because all of us are activists in the mind. We do share certain common values in, in terms of governance, society, all these matters. So principles which we commonly stand for,
So it was such a wonderful time spending, seeing him and his team of officers in action. So that is something which was very inspiring. And then obviously you get, even as a CC, you get a position correctly in a system when you have the right leadership from the staff side. That applies to all other associations, but particularly since he represents an association which seeks parity and equal treatment and fair play in the system, that gets more voice and more ears, particularly from people like me. Tend to listen to them well, and I've seen that activity which keeps happening, because I've been invited quite often for functions which were hosted, public programs which were hosted, and I'm sure Sanjay was the leading light of that, and I've enjoyed that as well, because I was also of course, as an officer in charge in the place, you feel happy that you are there, but more than that, it was the values that they stood for. So I was very pleased to be associated with his leadership and the values which he stands for. As probably Ajit was mentioning, Ajit has captured all those beautifully, as he always does, communicates so well. All his great values and virtues, the fact that he is an activist, that he is a reformer, a value-based principled man, and as Shitole put it across, which I know, because these CPWD buildings we took particularly because of his efforts, plus the beautification of that building. In fact, we had the privilege of going twice, invited by him, and you gave us a constitution. Even today, in fact, I do show to a lot of people that constitution which you gave. I think you gave us that constitution, yeah, which we as students used to by heart read that. Last days when someone came home, I was showing them that there is a constitution standing in front of very top place, it is place. So those were great efforts by him. We relish and we value that. Then of course he was a divisional DC, as they said, he has done well. That way I didn't have any issue about the officers in Nagpur side in terms of performance. Mostly the work allocated, particularly in adjudication, I refer to that in particular, it has been quite competently handled. We had only difficulty in the other side of the twin part of Nagpur zone, where we thought probably they were not doing as well. So they have all contributed, risen up to it under his leadership. So we are thankful to you, and continue to be active in life, which he will definitely, because he is now again in the All India Association president. So he'll have a lot of reasons, and I wish you have less reasons to be very active in that count, because the government should not have given so much of issues for giving rise to such contentious disparities or discriminatory practices. So I wish, as we go forward, all of you, particularly the youngsters who have joined the service and the joint commissioners who are here, they should learn the art of knowing these sort of rules and rule-based games. Then you don't have a reason to have. So it will be in our interest as a public person to see that Sanjay doesn't have too much of duties in the association in the All India level, so that these sort of issues don't come up at all. That will be the best tribute to the efforts which 25 years, as they said, he has been so active in this mission. So keep doing good work, enjoy time with family. Children are all there. It was nice. He gave a very small, crisp, beautiful speech. It was nice. Madam said many things. Half of that I didn't follow because of the speed and the Hindi part of it. But then obviously I was I'll figure it out what she said, because I'm also afraid if my wife comes and says something. So I was, as I said, I was thinking that time. So I knew she will not oblige you. So therefore I was lucky. I was thinking that time. So but still I left to see what the wife said is what truly represents you, rather than what the children tell of you. So obviously that was nice, that all of them were very active, very vibrant,
and his brother-in-law also was there. So you are not only a leader in the office, you are also a leader in the home. That is what I could make out. It's nice. That means leaders are born, not made. So some people are like that. So continue to do well in life. You will do. Remain active. Enjoy life. Keep meeting or be in touch wherever. If you travel to Kerala side, I'll be there 1 month after. So please let me know. I'll receive you there with family. Any of you, please come over. So wish you all the best. Thank you for all the good time we had here. Wishing all of you and the family good health, wonderful, peaceful life. Thank you. यानी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी कैसा ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। यानी ऐसा लग रहा था कि अभी अभी तो आपने ज्वाइन किया था और अभी तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ हमारा विभाग का कि जिसने मुझे ये काम करने का अवसर दिया विभाग में, जिस विभाग से मुझे प्रतिष्ठा मिली, नाम मिला और ये सब करने का मौसम मिला। अगर ये विभाग में काम करने का मौका नहीं मिलता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो मैं सबसे यानी ज़्यादा ये है कि इस डिपार्टमेंट का, कि डिपार्टमेंट नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम हैं। तो जो कुछ भी है, तो मेरा तो जर्नी चालू हुआ था गोंदिया से। सर मैं गोंदिया महाराष्ट्र का रहने वाला था। तो हमने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि बड़ा सपना कि कभी इंस्पेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे करके। हमारा छोटा सा सपना था कि कहीं बाबू बन जाए, कहीं क्लर्क किसी जगह में, रेलवे में या बैंक में या कहीं पर भी स्टेट गवर्नमेंट में। तो क्योंकि आसपास वहाँ ऐसे ही लोग थे और जब देखते थे कि कुछ हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ जो कैजुअल लेवल पे काम करते थे वो भी कहीं नौकरी लग जाता, तो लगता है कि यार हमको भी ऐसे किसी ऑफिस में नौकरी लग जाए जिस तरीके से यहाँ कैजुअल। तो हमारा कभी उस समय में सपना ही नहीं था। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा एक पड़ोसी थे एक्का करके, वहाँ पर हमारे जो करीब में ही, तो वहाँ एक एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन किए थे BK मिंच करके। वो नागपुर में भी पोस्टिंग था, उनका गोंदिया में पोस्टिंग था। तो उन्हें मैं देखा फर्स्ट टाइम बुलेट में आए और यूनिफॉर्म, तो मुझे एक थोड़ा जागृति हुई कि यार ये कौन सा नौकरी है, क्या है, ये तो बहुत अच्छा है, बुलेट भी है और यूनिफॉर्म भी है, ऐसा कुछ सर्विस हम लोगों को भी करना चाहिए। तो मुझे दिमाग में कहीं था कि ये सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर अपने को बनना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे मैं जब उस समय 11th-12th में वगैरह था, यानी फर्स्ट ईयर का वगैरह, अराउंड 80s का बात है ये। अभी वो नहीं रहे हमारे BK में साहब, वो जनरल सेक्रेटरी भी थे रायपुर में इंस्पेक्टर एसोसिएशन के। तो वो उनसे इंस्पायर होके मैं सेंट्रल एक्साइज के डिपार्टमेंट का पता चला और कहीं ना कहीं लगा कि सेंट्रल एक्साइज में आना चाहिए। और फिर हमने पहले स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया क्लर्क्स ग्रेड में। तो फिर ये इच्छा था कि सेंट्रल एक्साइज में जाना चाहिए। तो क्लर्क्स ग्रेड के बाद फिर ऑडिटर्स ग्रेड में आ गए, ग्रेजुएशन के बाद फिर इंस्पेक्टर्स ग्रेड में आ गए। और इंस्पेक्टर में आने के बाद भी शुरू में मेरा बहुत ट्रांसफ़र हुआ, हर साल 2 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है, एवरी ईयर्स, और बहुत दूर दूर। उस समय का जो एरिया था पूरा, अभी का जो है ना, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, इतना बड़ा एरिया था। और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में था, जहाँ जाने में घर से 40 घंटे लगते थे। कम्युनिकेशन भी नहीं था उस समय, मैंने बहुत परेशानी होता था, रास्ते भी बहुत ख़राब थे पहुँचने में, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं था। तो जैसे तैसे हम लोग आए, फिर बाद में भिलाई में आए, अलग अलग जगह, पहले मंदसौर में रहा, फिर छिंदवाड़ा में रहा, छिंदवाड़ा के बाद बालाघाट के बाद फिर कटनी के बाद फिर भिलाई, दुर्ग, रायपुर, ऐसा लॉट ऑफ स्टेशन में ट्रांसफ़र हुआ। तो इनिशियली स्टेज में तो हुआ, लेकिन बाद के पीरियड में वो कवर हो गया। तो लगभग बाद के पीरियड में मुझे रायपुर में ही 2000 से 2011 तक के लगभग 11 साल एक ही जगह रहने का मौका मिला। तो वहाँ भी जो पहले बहुत सारे ट्रांसफ़र हुए, वहाँ बाद में कंपनसेट हो गया वो जो पेन था। और नागपुर में भी मुझे लगभग, मैं 2013 से आया तो लगभग 12 साल यहाँ। तो 2 मेजर पोस्टिंग 2 शहरों में गया, तो इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकता था। तो रायपुर में रहने का मौका मिला, फिर उसके बाद नागपुर में रहा लगभग, यानी बड़ा पीरियड। और 2002 में जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, उसमें एक इशू हुआ था हमारा कि हमारा जो SC/ST का कुछ जो पोस्ट था, वहाँ SC/ST को न देके लगभग 35-40 पोस्ट था
वहाँ जनरल कैटेगरी को कर दिया था मैनिपुलेटेड करके, यानी सही तरीके से नहीं हुआ था। तो उसके लिए फिर 2002 में हमने फाइट करना चालू किया, और फाइट करना चालू करने के बाद मैं बोर्ड तक के गया, और बोर्ड ने फिर उसको बोला कि ये डायरेक्शन दिए कि ये गलत हुआ है और उसको रिव्यू किया जाए। तो 2002 में जो मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था वहाँ फिर 2004 में मिला, 2002 की जगह। तो 2004 में जब सुपरिटेंडेंट बना मैं, तो फिर उसके बाद 2004 से सीनियरिटी दिया। तो फिर सीनियरिटी के लिए मुझे फाइट करना पड़ा कि जब मैं 2002 में प्रमोशन हुआ था तो देन सीनियरिटी 2002 से मिलना चाहिए। तो अगर 2004 में होता तो मैं तो काफ़ी पीछे हो जाता हूँ। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग थे सिमिलर सिचुएटेड जो पर्सन थे, 25-30 लोग थे हमारे जोन में। तो तब जाके मैं बोर्ड से करस्पॉन्डेंस करते रहा, और 2014 में आफ्टर 10 ईयर्स मुझे 2002 का सीनियरिटी दिया बोर्ड ने। तो 2002 से मुझे सीनियरिटी मिला, बिकॉज ऑफ दिस 2020 में असिस्टेंट कमिश्नर बन पाए। तो यहाँ हम लोग डिपार्टमेंट में जो हमारे साथ जो इंजस्टिस हुआ था उसको लेके ये कहानी चालू हुआ। फिर बाद में रियलाइज़ किया कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ SC/ST के साथ ही नहीं है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम जनरल लोगों के साथ में भी है। जैसे स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, वर्क बर्डन का प्रॉब्लम हो गया, कुछ हरासमेंट का हो गया, CR खराब करने का हो गया। यहाँ 2002 में बहुत सारे हमारे जो ऑफिसर थे रायपुर में, अराउंड 25 ऑफिसर थे जिनका CR खराब कर दिया और उनका प्रमोशन नहीं हुआ, इंस्पेक्टर टू सुपरिटेंडेंट, और वो उनका कम्युनिकेट भी नहीं हुआ। वो जो CR उनको कम्युनिकेट भी नहीं हुआ। जब प्रमोशन नहीं हुआ 18 साल के बाद, तब उनको पता चला कि ये CR है कारण जिसके वजह से उनका प्रमोशन नहीं हुआ। तब हमें लगा कि ये भी बड़ा इशू है, इसके लिए काम करना चाहिए, और हमने काफ़ी उसके लिए करस्पॉन्डेंस किया है। अपना DOPT से भी करस्पॉन्डेंस किया, पार्लियामेंट्री कमेटी से भी करस्पॉन्डेंस किया। उस समय एक यूपी जल निगम का जजमेंट था ACR रिलेटेड कि अगर कम्युनिकेटेड नहीं हुआ है तो उसका प्रमोशन डिनाई नहीं करना चाहिए, इट इज़ अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस। तो यूपी जल निगम के ऊपर फिर हमने करस्पॉन्डेंस किया। तो DOPT का बोलना है इट इज़ नॉट अ जजमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, यूपी जल निगम का, इसलिए ये लागू नहीं होगा। तो फिर हम लोग काम करते हैं। 2 जजमेंट हमारे अगेंस्ट में भी आए, एक मेजर बहादुर सिंह का था और एक VK गोयल का। वो हमारे डिपार्टमेंट के थे, गोयल जिनका कमिश्नर लेवल के थे, तो उनका प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला था, लेकिन उसके बाद भी उनका प्रमोशन डिनाई इसलिए कर दिया क्योंकि उनका जो ACR था वो गुड था, तो उस वजह से उनका जो प्रमोशन नहीं हुआ है। तो VK गोयल केस था कुछ समथिंग, ऐसी गोयल मुझे याद आ रहे हैं। लेकिन लकीली उसी दरमियान एक देवदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छा जजमेंट है, जिसमें ये प्रिंसिपल सेट किया कि अगर ACR कुछ भी हो वो कम्युनिकेट होना चाहिए, व्हाट्सओवर मी द, अगर उसने अच्छा काम किया दैट शुड बी कम्युनिकेटेड, जिससे वो और इंस्पायर हो। अगर गलत किए हैं वो भी कम्युनिकेट होना चाहिए, जिससे उसे ये पता चले कि उसने क्या गलती हो और सुधारने का मौका मिले। तो मुझे यह ना बड़ा प्रसन्नता हुआ, और उस बेस पे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी मिला उस जजमेंट की वजह से। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, देवदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि इसको सभी जगह लागू होगा, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSUs एक्सेप्ट डिफेंस, मिलिट्री को छोड़कर। तो यहाँ जो जजमेंट था देवदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो हमें लगा कि इसका बेनिफिट सब लोगों को मिलना चाहिए। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में उसको लागू नहीं किया था, तो फिर हमने उसको छत्तीसगढ़ में भी लागू करवाने की कोशिश किया, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी हमने उसको कोशिश किया और RTI में भी फॉलो किया। तो बताते हुए खुशी होता है कि हमारे RTI के प्रयास की वजह से यहाँ हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी लागू करवा दिया, और वहाँ भी अभी कम्युनिकेशन होना चालू हो गया है। पहले जैसा DOPT ने सर्कुलर निकाला हमारे यहाँ, वैसा स्टेट में नहीं है, बहुत सारे स्टेट में अभी भी कम्युनिकेट नहीं होता है। PSUs ऐसे बहुत सारे जहाँ अभी भी कम्युनिकेट नहीं होता, और उस वजह से हमारा जो ऑफिसर्स है या एम्प्लॉई हैं उन्हें परेशान होना पड़ता है। तो फिर जब मैं इधर आया तो यहाँ महाराष्ट्र में भी हमने करस्पॉन्डेंस किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, और महाराष्ट्र में भी 1/11/2011 से ये यहाँ पर भी लागू हो गया महाराष्ट्र में भी। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉय के वेलफेयर में हम लोग सोचे कि ये सिर्फ SC/ST का नहीं, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम लोगों को लार्जर स्केल में लेना चाहिए और हम लोगों को उठाना चाहिए। जैसा बहुत सारा चीज़ है कि भाई हमारे यहाँ अगर किसी का CR खराब है
तो उसका प्रमोशन नहीं होता, चार्जशीट पेंडिंग है तो प्रमोशन नहीं होते हैं। लेकिन चार्जशीटेड आदमी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं और सब बन सकते हैं, बड़ा बड़ा पोस्ट में रह सकते हैं, होम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो जब तक चार्जशीट, लेकिन हमारे यहाँ एलडीसी से यूडीसी भी नहीं बन सकता अगर चार्जशीट पेंडिंग है। तो हमारा ये कहना है कि अगर चार्जशीट पेंडिंग है आप उसको डिसाइड करो, अगर गलत किया है पनिश करो, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं। लेकिन सालों साल तक चार्जशीट पेंडिंग नहीं होती है, वो हरासमेंट होता है उसका। हम लोग यह कभी नहीं बोलते हैं कि अगर कोई भी गलत काम किए हैं तो आप उसको छोड़ दो। अगर गलत काम किया है तो प्रोपोर्शनेट उसको जो सजा है वो इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ उसमें देने में कोई भी गलत नहीं है, उसे मिलना ही चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसे केसेस देखा हमने कि वो इंटेंशनली लोगों को हरासमेंट करने के लिए, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं कि जो इनोसेंट लोगों को भी चार्जशीट हुआ है छोटा छोटा मिस्टेक की वजह से। तो यहाँ कहीं ना कहीं रोकने का ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग काम करते रहें। रायपुर में मैं 2004 में सुपरिटेंडेंट एसोसिएशन में भी था, वहाँ पर जब एज ए जनरल सेक्रेटरी करके 2004 में रायपुर का सुपरिटेंडेंट एसोसिएशन में काम किया। तो एक अच्छा एक हमारे से जो हो पाया एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो उस समय एक नॉन फंक्शनल, जब स्वामीज न्यूज़ आता था उसमें नॉन फंक्शनल पे स्केल जो दिया था सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस जो है, तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के सेक्शन ऑफिसर को 4 साल के बाद नॉन फंक्शनल पे स्केल अंडर सेक्रेटरी का मिलना चाहिए, ऐसा एक ऑर्डर था। तो मुझे क्लिक हुआ कि मैंने बोला जब ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में जब हो सकता है 4 साल के बाद नॉन फंक्शनल पे स्केल, तो हमारे सुपरिटेंडेंट को मिलना चाहिए। यहाँ भी 18-18, 20-20 साल लग रहे हैं। तो हमने फिर करस्पॉन्डेंस किया और उसके बाद ये उसका रिजल्ट है कि ये नॉन फंक्शनल जो पे स्केल जो आ गया सुपरिटेंडेंट को आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस ये आ गया। तो मुझे एक पॉलिसी लेवल पर लगा कि ये होना चाहिए और ये हो गया तो बहुत अच्छा है। डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे काम है, लेकिन एक काम शेयर करना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हमने इनिशिएट किया और वो हो गया पॉलिसी लेवल का जो है। एक बीच में जब सेंट्रल एक्साइज में गैल्वेनाइज डज नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर करके एक जजमेंट आया था कि गैल्वेनाइज डज नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। तो मैं वहाँ रेंज में पोस्टिंग था, एक बहुत बड़ा यूनिट था, बहुत टर्नओवर था। तो बोले इसमें तो ड्यूटी नहीं है, टैक्स इसलिए नहीं है क्योंकि गैल्वेनाइजेशन डज नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। तो हमने बोला कि भैया ये लेकिन 73 में गैल्वेनाइजेशन अमाउंट टू मैन्युफैक्चर था, चैप्टर 73 में था, 72 में नहीं था, क्योंकि चैप्टर 73 में एक फुटनोट था जिसमें दिया था कि गैल्वेनाइज अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, जो 72 में नहीं था। तो फिर हमने बोला कि भैया इसमें तो ऐसा कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं कि जो 73 में गैल्वेनाइजेशन के ऊपर ड्यूटी है और 72 में नहीं है। तो फिर हमने एक बजट में एक बना के भेजा कि 72 में जो गैल्वेनाइजेशन उसमें भी अमाउंट टू मैन्युफैक्चर होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जो प्रपोजल भेजा वो हो गया पॉलिसी लेवल के ऊपर और फिर बाद में सभी को गैल्वेनाइजेशन अमाउंट टू मैन्युफैक्चर हो गया। तो ऐसा कुछ कुछ जो इश्यूज़ है अगर हम लोग करते हैं जीवन में, कोई इशू उठाते हैं और वो हो जाता है तो प्रसन्नता होता है जीवन में। हमारा यहाँ आने के बाद में जब मैं 2013 में इधर आया तो क्वार्टर्स के भी कुछ इश्यूज थे कि मैं पोस्टिंग मेरा था यवतमाड़ में, मेरा फैमिली था रायपुर में, एक बेटा मेरा इधर था, क्वार्टर खाली भी थे लेकिन क्वार्टर्स हमको अलॉट नहीं हो रहे थे। मैं सोचा कि मेरा बेटा यहाँ पर है, क्वार्टर मुझे मिल जाता है तो मैं फैमिली यहाँ शिफ्ट कर देता। तो बोले नहीं आपको पोस्टिंग रायपुर में यवतमाड़ में, इसलिए यहाँ क्वार्टर मिल नहीं सकता। तो हमारे देश में सर बहुत सारे क्वार्टर खाली पड़े हुए हैं और उससे सरकार को रेवेन्यू भी नहीं मिलता है और बहुत सारे बर्बाद हो गए क्वार्टर। रायपुर में देखे थे तो बहुत सारे क्वार्टर बर्बाद हो गए अलग अलग जगह। तो ये वैकेंट क्वार्टर्स को भी अलॉटमेंट के लिए कुछ पॉलिसी होनी चाहिए जिससे वो हमारा जो क्वार्टर्स है वो लोगों को यूटिलाइज भी हो और सरकार को रेवेन्यू भी मिले और ये रहे। ये हमारा जो नागपुर में देखेंगे अराउंड स्टेट डिपार्टमेंट में 700 क्वार्टर खाली पड़े हुए प्राइम लोकेशन में। यह हमारा जो सिविल लाइन है, काटोल रोड है, सेमिनर हिल्स है, अराउंड 700 क्वार्टर्स खाली पड़े हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, लोगों का यूज़ नहीं आ रहा है। तो यहाँ सब हम लोग इश्यूज़ को रेज किया है ताकि हमारा जो एसोसिएशन में यह मकसद नहीं है
कि हम लोग कुछ व्यवधान पैदा करें या एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दिक्कत दें। हम लोग चाहते कि हम लोग भी लॉ के हिसाब से ही काम करें और जिससे हमारे जो देश है उसको भी फायदा हो, विभाग का भी नाम अच्छा हो और विभाग भी आगे बढ़े और हम लोग भी आगे बढ़े। हम लोग इसलिए नहीं है कि हम लोग कोई ये करें, हम हमारे जो सारे जो मेंबर्स है उससे हम लोग हरदम करते हैं कि हम लोग जो भी काम करें वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ ही करें। हम लोग को ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कोई अनड्यू तरीके से डिपार्टमेंट का नाम खराब हो या कुछ भी हो। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ ही करें तो तभी हम लॉन्ग टर्म तक के अच्छा काम कर सकते हैं। जहाँ तक बात है, मेरा खुशी इस बात का हुआ कि थेटे सर ने और जॉनी सर ने मुझे यहाँ आने के बाद सिटी डिवीज़न में भी काम करने का मौका दिया, विश्वास दिया और मैंने मेरे लेवल पे जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो करके वहाँ डिवीज़न को शिफ्ट किया और ऑडिट में भी किया जैसे सर ने बताया था। और मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे जीएसटी डे पे सर ने सम्मानित भी किया। तो मैं सभी का, हमारे सीनियर ऑफिसर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अच्छा हमने काम किया तो सर उसको रिकॉग्निशन भी आपने किया, तो उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ बात हुआ हमारा इसका, अभी जो पोस्ट सर हमारे यहाँ बहुत वैकेंट है, अराउंड 45% वैकेंट पोस्ट है। हम लोग काफ़ी दिन से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। रेंज में हमारे जो ऑफिसर्स हम देखते हैं बहुत परेशान है, सुपरिटेंडेंट्स है, इंस्पेक्टर्स है, लॉट ऑफ वर्क है। और मेरा डिवीजन सिटी में देखा 15,000 टैक्स पेयर हैं और एक रेंज में एक सुपरिटेंडेंट है, एक इंस्पेक्टर है। लोग सैटरडे को आके काम कर रहे हैं, संडे को आके काम कर रहे हैं, लेट आवर्स काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी अगर छूट जाता है सर तो उनके ऊपर फिर ये होता है कि आपने ये छोड़ दिया। तो जब भी ऐसा कुछ हो, कुछ छूट जाए किसी से, तो उसका इंटेंशन देखा जाए। छोटा मोटा यानी अगर उसका इंटेंशन नहीं है तो काम करेगा आदमी तो स्वाभाविक है गलती हो सकता है, कोई भी आदमी काम करेगा तो गलती हो सकता है। अगर उसका इंटेंशन देखना चाहिए, अगर इंटेंशन है उसने जानबूझ के गलती की है निश्चित रूप से उसको पनिश करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अनइंटेंशनली काम करते हुए गलती हो जाती है तो उसको उस तरीके से लीनियंट व्यू लेके उसको ये करना चाहिए, ऐसा मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि सर अगर कुछ छूट जाता है तो हम लोगों को ये है, और ये जो है कि सर को मैं धन्यवाद दूंगा जॉनी सर को कि वहाँ जब से आए इधर उन्होंने जो पेंशन्स वाले जितने भी आए कि पहले रिटायर्ड होने के बाद भी 2-2, 3-3 महीने तक के ड्यूज नहीं मिलता था, पीपीओ नहीं मिलता था। सर आने के बाद पूरा रेगुलराइज हो गया, आज मुझे पीपीओ मिल गया सर, दैट इज बिकॉज ऑफ यू। पीपीओ जनरेट होकर मिल गया सर, और इसका सबसे पहला काम सर आपने किया है, यानी फर्स्ट जब से आप आए तो आपने यह काम किया और सभी लोगों को मिलने लगा। आपने अकाउंटेबल बनाया कि एडिशनल कमिश्नर को, आप ही ने बोला कि अगर नहीं होता तो एडिशनल कमिश्नर शुड। तो दैट्स वाई ये हुआ कि अभी सब लोगों को, जितने भी लोग रिटायर्ड हो रहे हैं वो समय से पैसा मिल रहे हैं। जॉनी सर तो आने के बाद हमारा एसोसिएशन का बहुत सारा जो काम है वो कम कर दिया, क्योंकि वही सब काम कर लेते हैं। यानी जो जुडिशियस तरीके से ऑर्डर्स भी है, जो ऑर्डर भी हुए हैं और जुडिशियस तरीके से हुए हैं, तो हमारा मुझे उस वजह से बहुत ज़्यादा जाने के पास सर का ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो इससे पहले मैं याद करना चाहूँगा, मैं जब से यहाँ हूँ AK पांडे सर आए थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी सहयोग किया। हमारा जो एसोसिएशन है उसको ऑफिस AK पांडे सर ने ही दिया। हमारा जो सैलरी डिडक्शन जो चालू किया वो भी AK पांडे सर ने ही किया। उसके बाद भीमाशंकर सर आए, उन्होंने भी सर यानी बियॉन्ड, यानी हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा रिलीफ दिया। यहाँ इतने डिसिप्लिनरी केसेस थे सर, और सारे केसेस में भीमाशंकर सर ने सारे जो लोगों ऑफिसर्स को रिलीफ दिया। यानी एक तो हमारा जो विजय बुरेवार था उसको 3 इयर्स आ रहा था सर, उसके बाद भी उन्होंने उसको पूरा ऑल पेंशनरी बेनिफिट्स सब दे दिया उन्होंने विथ ये। तो भीमाशंकर सर थे, उन्होंने भी काफ़ी रिलीफ दिया। और हमारे जो सांखला सर थे सर, उन्होंने भी काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट किया और काफ़ी रिलीफ दिया, जितने भी हमारे डिसिप्लिनर्स थे। और हमारे जो केसेस सर वो इंटेंशनली नहीं है, जितने भी अगर देखेंगे दे आर बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस या कुछ छोटा मोटा कुछ हो गया। ऐसा नहीं है कि कुछ पैसा डिमांड किया, ये किया वो किया, इस तरीका नहीं है, या कुछ मेलाफाइड इंटेंशन से नहीं है।
तो चाहूँगा कि सर भी जाने के पहले जितने कुछ हो गए केस हमारे, तो वो उनसे अनुरोध करूँगा कि सर जैसे सांकला साहब करके गए हैं, जैसे भीमाशंकर सर कर गए हैं, तो आप भी सर हमारे जो लोगों को थोड़ा रिलीफ देके जाएंगे, ये मेरा गुजारिश है अगर हो सके तो। और जहाँ तक बात है आगे का, तो सर मेरा ये सोचना है कि हमारा जो देश है, हम लोग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो मानते हैं लागू भी हो गया है, लेकिन उसका जो स्पिरिट है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उसके बाद जस्टिस, स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय, ये जो हम लोग बोलते हैं वह कहीं ना कहीं हम लोग उसको ट्रू स्पिरिट में लागू करने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। आज भी हम देखते हैं इकोनॉमिकल बहुत डिस्पैरिटी है। एक तरफ लोगों के पास बहुत पैसे हैं, दूसरी तरफ 90% ऐसे लोग हैं जिनका मंथली फैमिली इनकम 25,000 है, उससे कम है। तो अगर 25,000 रुपये किसी का अगर फैमिली इनकम है तो वो डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो हमारा यह सोचना है कि यहाँ जो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द सम पॉलिसी की वजह से ये हो रहे हैं, कि हम लोग जो पॉलिसी है वो उस वजह से यहाँ इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी बढ़ रहा है। सोशल इनइक्वलिटी का भी लगभग यही स्थिति है। जस्टिस में भी बहुत बुरा स्थिति है। अगर हम देखेंगे कि न्याय मिलने में बहुत देरी होता है और जो मिलना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो सर हमारा आने वाला टाइम जो है वहाँ इसी चीज़ के लिए कमिटेड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रू स्पिरिट है कि समता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय, तो इंसान हम जुडिशियस तरीके से देखें। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि भैया हमको किसी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हमको नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है वो हम लोग कर रहे हैं। हम अपने से पूछें, अगर हम लोग ये नहीं करके इससे ऊपर उठ के अगर काम करते हैं और तो हम लोग एक अच्छा देश बना सकते हैं। और हम काम करने से मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा बढ़िया तरीके से, अच्छा तरीके से हम लोग इस देश को बना सकते हैं, डिपार्टमेंट को बना सकते हैं। मेरा हरदम ये कहना रहता है कि जो विभाग है, विभाग में हम लोग सिर्फ नौकर बन के काम ना करें। हम ये सोचें कि ये हमारा विभाग है, हम यहाँ के मालिक है, यहाँ कुछ गड़बड़ भी होगा तो हमें ठीक करना है, बाहर से आके कोई ठीक नहीं करेगा। तो अगर हम लोग यही सोचे कि हम लोग विभाग में अच्छे से काम करें, देश भी सोचे कि ये मेरा देश है और यहाँ अगर कुछ गड़बड़ियाँ भी है तो उसका जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारा है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा और थोड़ा समय, थोड़ा बुद्धि और थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा। तो हम थोड़ा समय, थोड़ा पैसा और थोड़ा बुद्धि दे सभी लोग। और हम लोग तो जैसे मैं देखता हूँ कि अगर मैं आज यहाँ नौकरी में आया हूँ तो ये बिकॉज ऑफ द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्ट्रगल है, उन्होंने जो रिजर्वेशन दिलाया, उस वजह से मैं आज नौकरी में हूँ। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्ट्रगल नहीं करते तो आज मैं नौकरी में नहीं होता। तो हम लोग जो नौकरी में, जो रिजर्वेशन मिला, डॉक्टर अम्बेडकर ने स्ट्रगल किया और जो रिजर्वेशन मिला शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, बिकॉज ऑफ दिस मैं नौकरी में हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर नौकरी में हूँ या शेड्यूल ट्राइब्स का नौकरी में हूँ, तो एक तरीके से मैं अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं यह हमारा जिम्मेदारी हो जाता है कि जो हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो समाज है वो आज पीछे रह गया है, उसको अपलिफ्ट करने में कहीं ना कहीं हमारा जिम्मेदारी है। तो वहाँ हमें जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो हमारे जो सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के हमारे जो साथी हैं, उनका ये नैतिक दायित्व है कि वहाँ अपने समाज का जो पीछे रह गया है उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए। आज भी देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत ही यानी विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं। अभी हाल ही में मैं एक वीडियो देख रहा था, तो इधर एक स्लम है जो एकदम डंपिंग ये है, यानी कचरा है, कचरे का जो डंपिंग है उसके ऊपर स्लम बना हुआ है। वहाँ एवरेज लाइफ 45 साल है, 45-50 साल के वहाँ ऊपर कोई जीता नहीं है सर वहाँ पर। तो हम 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर ये स्थिति है तो हम कहाँ सही मायने में हम लोग ये कर पाए। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, न्याय मिले, भाईचारा हो, समाज में भाईचारा हो और हम लोग भी एक प्रगत देश हो, डेवलप्ड कंट्री बने। इसी भावना के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। और हमारा फैमिली ने भी जो सपोर्ट किया,
मेरा मिसेस जो है उन्होंने भी मुझे ये काम में सपोर्ट किया। अगर उनके बिना मैं ये कर ही नहीं पाता सर, कि उन्होंने जब भी हमें कहीं बाहर जाना है, दिल्ली जाना है, कुछ भी जाना है, तो कभी कुछ ये नहीं किया। तो उनका भी मैं शुक्र ये करता हूँ कि उन्होंने मुझे काम में ये किया, तो उसी वजह से हम लोग ये कर पाए। बच्चों ने भी सपोर्ट किया, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। और हमारे मुझे इस बात का खुशी है कि हमारा जो नया टीम है जो बन गया सर, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। खासकर माया धोंगड़े मैडम, भूपेंद्र और पूरा नया टीम है। यहाँ मैं हरदम मिस करूँगा, इस विभाग को भी मिस करूँगा इस जाने के बाद, लेकिन मैं हरदम लगा रहूँगा सर। ये एश्योर करता हूँ कि जब तक मेरा दिमाग चलता रहेगा, शरीर चलता रहेगा, मैं लगा रहूँगा, थकने वाला नहीं हूँ। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस, बट देश और समाज के लिए काम करने के लिए मैं रिटायर्ड नहीं हुआ हूँ। मैं काम करता रहूँगा, और कभी भी मुझसे मेरे लाइक का किसी भी को मदद का ज़रूरत रहे तो आप निश्चित रूप से मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। और मैं किसी के लिए अगर कुछ कर पाया तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। इसी के साथ मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हमारे सारे इंस्पेक्टर्स, सुपरिटेंडेंट्स, अजीत, भूपेंद्र और सब नीलेश, सब जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, तो सभी लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, स्नेह दिया। साथ ही हमारे हायर ऑफिसर्स भी जिन्होंने इतना प्यार दिया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आभार व्यक्त करने का समय आ गया है। सबसे पहले अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे मुख्य आयुक्त महोदय श्री के.सी. जॉनी सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मंचासीन आयुक्त महोदय श्री अविनाश थेटे सर, आयुक्त श्री प्रदीप कुमार बोहरा सर, अपर आयुक्त महोदय श्री वेंकटेशम अनामला सर, संयुक्त आयुक्त श्री सतीश चितोले सर और सामने बैठे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी को प्रमुख रूप से धन्यवाद देता हूं। और जिनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए सहायक आयुक्त श्री संजय थूल सर का आभार, अभिनंदन और आपके भविष्य के लिए अनेक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और अंत में सभागार में उपस्थित सभी अधिकारी और कर्मचारीगण का धन्यवाद और अभिनंदन कि आपके बिना यह कार्यक्रम असंभव था। साथ ही कार्यक्रम के आयोजन में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ और निदा फाजली की 2 लाइनों से मैं कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगा। ये 2 लाइनें थूल सर के व्यक्तित्व पर भी फिट बैठती है। बात कम कीजिए, जेहानत को छुपाते रहिए। बात कम कीजिए, जेहानत को छुपाते रहिए। अजनबी शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए, हाथ मिलाते रहिए।